مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر زمانے کو سب کچھ بتاتے ہیں اور مسجد بنا کے خوش نہ ہو۔ اے مسلمان، یہاں جنت بنانے والے بھی دوزخ میں جاتے ہیں۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں رکاب پر تھا۔ ملک الموت آ گیا، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت۔ وہ لوگ قداور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے۔ وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی لکھنے والے نے کیا لکھا ہے؟ بچے جب بھوک سے کسی کے بل بلاتے ہیں، مجھ کو سخی امیر بہت یاد آتے ہیں۔ کس طرح مٹائیں گے یہ نیچ لوگ زمانے کی غربت، جو مال غریبوں کے حصے کا خود کھاتے ہیں، اور مت کر حرام مار سے بچوں کی پرورش۔ ان کے چلن زمانے کو سب کچھ بتاتے ہیں اور مسجد بنا کے خوش نہ ہو۔ اے مسلمان، یہاں جنت بنانے والے بھی دوزخ میں جاتے ہیں۔ ایک شداد نامی حکمران تھا، بادشاہ تھا، دولت مند تھا۔ اس نے شرک کیا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شداد کی جنت احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور ایمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد سارے 8000 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بد تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر امان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے ممالک اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔
शदाद की अरम यानी जन्नत में ये फन अरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे और इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शदाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमीर के बाद इसमें कदम रखेगा। मामारों ने जब इस जन्नत की तकमीर की इत्तला दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत की तरफ निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी इसका पाँव ज़मीन पर और दूसरा पाँव रुकाब पर था। मलकुल मौत आ गया। शहदाद ने इससे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूँ। वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत ने इसकी जान कब्ज़ कर ली। वो ज़मीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शहदाद की मौत के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन ने चीख मारी और शहदाद की पूरी जन्नत ज़मीन में धंस कर गायब हो गई। शहदाद का अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अकड़ पर गुरूर का पर्दा पड़ता है तो शदाद हो या शदीद, इसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत होद कौम को शदाद का अंजाम बता बता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक कि वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया और वो कौम को आखिरी बार समझाकर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने इनके बाद आद पर खौफनाक आंधियाँ मुसल्लत कर दी। वो आंधियाँ 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत ज़मीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। पानी के ज़ख़ीरे बचे और ना ही दरख्त पौधे जानवर और ना ही खेतियाँ बचीं। सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए। कौम आद के बाद समूद का दौर आया। ये लोग मौजूद सऊदी अरब के इलाके मदाइन साला में आबाद हुए, पहाड़ तराश कर घर बनाए। अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिज़्क़, पानी और सब्ज़े से नवाजा। वो लोग कायदावर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफर की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भिजवाए। वो इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो भी पास ना आए। अल्लाह ताला ने इन्हें हदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊँटनी और इसका बच्चा भी भिजवाया, लेकिन वो हदायत पाने की बजाय ऊँटनी के दुश्मन हो गए। इन्होंने एक दिन ऊँटनी पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। ऊँटनी का बच्चा डरकर पहाड़ की तरफ दौड़ा। पहाड़ शक हुआ और वो इसमें गुम हो गया। ये वाक़या कौम समूद की तबाही का बायस बना। हज़रत जिब्राईल ने चीख मारी और मदान साला से लेकर हिजर मौत तक 500 किलोमीटर के पहाड़ छोटी छोटी कौशों में तकसीम हो गए। यूं कौम समूद भी बर्बाद होगी। हज़रत साला कौम की तबाही के बाद हज़रत हूद के इलाका अहकाफ में आ गए, पहाड़ों में आबाद हुए, इंतकाल फरमाया और पहाड़ की चोटी पर मदफून हो गए। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान में मौजूद है। हज़रत हूद और हज़रत साला के मज़ारात भी सलाला में वाक़या है। नासा को 1992 में ओमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सिला मिट गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह खंदक थी। वो शहर पूरे का पूरा खंदक के जोहर में गर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान काम नहीं था। चनाचा ये लोग 26 साल गुजरने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोद सके, और ये चट्टान शदाद की जन्नत का सिरा थी। इस जन्नत की
तलाश में जुमा 28 दिसंबर को पहुंचा। यह इलाका माजी में यमन का हिस्सा होता था। तारीख की किताबों में इसका नाम हज़रमौत था। उलमाए और आर्कियालॉजिस्ट सदियों से इसकी तलाश में थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कौम आद और कौम समूद का जिक्र फरमाया। इस जिक्र ने भी इस तलाश को महमीज कर दिया। यह इलाका 1843 में सबसे पहले एक जर्मन फौजी ने दरियाफ्त किया था। इसका कहना था इलाके की रेत बारीक सफूफ की तरह थी और इसमें जो भी चीज़ गिर जाती थी वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती थी। इसका ख्याल था रेत के नीचे ज़मीन नहीं, ये इलाका रेत की दलदल है। शदाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है। उबार रेत के समुद्र में छोटा सा शहर है। शहर से बाहर निकले तो दाएं बाएं रेत के टेलों में, और ये टेले एक तरफ से सऊदी अरब और दूसरी तरफ से यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। मैं इस्लामाबाद से उबार पहुंचा था, जबकि मेरे दोस्त डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा जनूबी अफ्रीका से सराहला आए थे। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा दिल के सर्जन भी हैं। ये भी मजहबी सियासत के जुनूनी हैं। ये तौरात, अंजील और कुरान के मकामात तलाश करते रहते हैं। ये चंद बरस कब्र इसराइल गए और दीवार गिरिया के आसपास के नाम से शानदार किताब लिखी। मैंने ये किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा को तलाश किया और यूं इनके साथ दोस्ती होगी। हमें इस सफ़र के दौरान महसूस हुआ जैसे हम एक ही ज़ात के दो टुकड़े हैं। वो कुदरत ने हमें मिलाकर हम पर अजीम एहसान किया। हम हफ्ता 29 सितंबर की दोपहर सराहला से 150 किलोमीटर का फासला तय करके उबार पहुंच गए। मैं आपको उबार के बारे में बताने से पहले हज़रत हूद और हज़रत सालेह के बारे में बताता चलूं। ये दोनों नबियाए सराहला में मदफून हैं। हज़रत सालेह शहर से 200 किलोमीटर दूर स्याह खुश्क पहाड़ पर आराम फरमा रहे हैं, जबकि हज़रत हूद शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर दफन है। हज़रत हूद का एक मज़ार यमन में बरहूत के मकाम पर भी मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इस मज़ार की निशानी बताई थी। वो सूर का टेले पर वाक़या है और हज़रत हूद के सरहाने झाड़ का दरख्त है। ये दोनों निशानियाँ सराहला में मौजूद हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। हम सख्त गर्मी में उबार पहुँच गए। हमारे सामने शदाद की जन्नत के आसार मौजूद थे। वो एक वसी मैदान था। मैदान के दरमियान में चूने के पत्थर बिखरे हुए थे। हम पत्थरों के दरमियान से होते हुए आखिरी सिरे पर पहुँचे। वहाँ अचानक एक वसी घड़ा दिखाई दिया। हम घड़े में लड़खड़ाते हुए नीचे पहुँचे। सामने चट्टान थी और चट्टान के दरमियान सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चले गए। सीढ़ियाँ एक छोटे से कमरे में जाकर ख़त्म होगी। अंदर खंदक की बू फैली हुई थी। पानी का पंप और पाइप भी मौजूद था। कमरे में अंधेरा था। शदाद की जन्नत इस कमरे के नीचे कहीं दफन थी। इससे नीचे खुदाई नहीं की गई थी। हमारा दिल घबरा गया। हम बाहर आ गए। हमारे ऊपर चट्टान झुकी हुई थी। चट्टान पर दर्जें थीं और वो दर्जें मुंह से इबरत का स्यापा कर रही थी। चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे कहस कर रही है। गोया आज 8,500 साल बाद भी शदाद की जन्नत ज़मीन में धंस रही है। हमने ऊपर चट्टान की तरफ देखा। चट्टान के ऊपर गर्म हवा बह रही थी और हवा के दरमियान आसमान हिचको ले रहा था। पूरी कायनात इस वक्त 3 नुक्तों में समेट आई थी। आसमान, हवा और रेत का कब्रिस्तान। माजी, हाल और मुस्तकबिल और तीनों के दरमियान हम थे। खौफ, वहशत और इबरत की ज़मीन पर खड़े। कभी आसमान की तरफ देखते थे, कभी रेत की तरफ और कभी चट्टान के नीचे दफन शदाद की जन्नत की तरफ, और कभी ये सोचते थे वक्त के इस
احقاف جس میں شداد جیسے لوگ دفن ہو گئے، اس میں ہم جیسے لوگوں کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔